پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کی درخواست. جیلر کو تحریری درخواست میں 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کی کھلے ماحول میں ملاقات کا کہا گیا. پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے کل مذاکراتی ٹیم کی بانی سے ملاقات ہو جائے گی. حکومتی کمیٹی کے 7 مذاکرات کے 2 اجلاس ہو چکے. تیسرے اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے. کوئی بیک ڈور رابطے نہیں. بشرا بی بی کا مذاکرات سے تعلق نہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی سے ملاقات کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطے میں ہے. ایاز صادق نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر مذاکرات نہ ہی سمجھیں. اس کا مطلب ہوگا حکومت نہیں چاہتی مذاکرات آگے بڑھیں. بانی کی ہدایت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو. بولے حکومت کو خدشہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار میں آئے تو انتقام لیں گے. ہمارا 2 ٹوک موقف ہے کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. کسی نے کرپشن کی ہے یا جو کچھ کیا ہے تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. 8 فروری کے الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے پاس ڈائیلاگ اور احتجاج کے علاوہ کیا راستہ تھا؟ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ پھر سے مؤخر. 13 جنوری کو سنایا جائے گا. عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. فیصلہ سنانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا. توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں صرف رسید جمع کرانا لازم تھی. اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ بانی نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید جمع کرائی. بعد نظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں, پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. براہ راست نہیں کہا لیکن ایسے پیغام پہنچ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں ہیں انہیں باہر نکالا جائے. بچوں کسی کا ایندھن مت بننا. وعدہ کرو کبھی ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے. کوئی کہے آگ لگا دو, سڑکیں بلاک کر دو, کاروبار بند کر دو تو ایسا مت کرنا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤدین ذکری یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا کوئی کہے پیٹرول بم پھینک دو, پولیس والوں کے سر توڑ دو تو بہکاوے میں کبھی مت آنا. ایسا کرنے والے بچوں کو آج معافی مانگ کر باہر آنا پڑا. کہا والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور ساتھ دے گی. کوشش ہے اگلے سال اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کی جائے. طلباء کے لیے لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ آ چکی. 2018 کا تجربہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کم نہیں. پی ٹی آئی نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے سیاست کا طرز بدل دیا. پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر وہ کر رہی ہے جو بھارتی ایجنسی را بھی نہیں کرتی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں کا گٹھ جوڑ نہیں. کہا سندھ میں ترقیاتی کام تیز کرنے کا ارادہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کہوں گا کراچی کا دورہ کریں. اڑان پروگرام کا مرکزی محور برآمدات بڑھانا ہے. صحافی نے سوال کیا واٹس ایپ پر میسج تک جاتا نہیں, پاکستان کیسے اڑان بھرے گا؟ احسن اقبال نے کہا ملک کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے, سائبر سیکیورٹی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں. ایک دن آئے گا آپ کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا. طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی. مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا. کہا ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں. پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں. ایوانوں کو کیسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے دلچسپی ہی نہیں. ہمیں پتا ہے کرم مسئلے کی بنیاد اور حل کیا ہے. کرم کے وفود کو امن کا راستہ بتایا تو اگلے دن فسادات شروع ہو گئے. امدادی سامان کے ٹرک آج بھی پاڑا چنار روانہ نہ ہوئے. کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ. توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا. توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ دھرنا ہوگا.
डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद 2 दहशतगर्द कुर्रम में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को शिकंजे में लाएंगे, इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा, अमन मुआहिदा बरकरार रहे। आज से ही तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 478 रन भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सके। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतकर व्हाइट वॉश कर लिया। 58 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन होने के बाद भरपूर मुजाहमत की। कप्तान शान मसूद के 145 रन नाकाफी, बाबर आजम के 81, सलमान आगा के 48 और मोहम्मद रिजवान के 41 रन भी काम न आ सके। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया था। 2 मैच की सीरीज प्रोटियाज ने 2-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। केपी हाउस इस्लामाबाद में 5 अक्टूबर को पुलिस कार्रवाई के नुकसानात की रिपोर्ट असेंबली में पेश। स्पेशल कमेटी रिपोर्ट में नुकसान का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद का लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस से वज़ीर आला की 25 लाख रुपए की M4 राइफल, 6 लाख का आईफोन और 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला की 2 V8 गाड़ियों को 15,40,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। केपी हाउस से 45 लाख रुपए के गैस मास्क और मोबाइल फोन्स भी गायब हुए। कीमती आलात, CCTV कैमरे, DVR, लैपटॉप और कंप्यूटर को होने वाले नुकसान का तखमीना 10.5 लाख लगाया गया। असलहा और शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जेल में 1.25 साल हुआ नहीं और पाकिस्तान की सालमियत पर हर सौदा करने को तैयार हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा सिलेक्ट हो गए। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने PTI क़यादत पर तीर जला दिए। असेंबली से खिताब में कहा कि एक जमात हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दूसरी जमात अपनी सहूलत और मुफाद के लिए पाकिस्तान बेचने को तैयार है। सिवाय भुट्टो खानदान कोई एक जमात बता दें जिसके लीडरान ने कुर्बानी दी हो। एक जमात डील करके जाती और आती है। इंसानी स्मगलिंग गिरोहों को निशान इबरत बनाएं। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद असासे जब्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का आगाज खुश आइंद है। वजारत कानून से मुशावरत के बाद इस्तगासे के लिए सीनियर वकला तैनात किए जाएंगे। वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला के ताउन से आगाही मुहिम चलाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाई जाए। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर सखर की अदालत ने वजीर आज़म, वजीर खारजा और वफाकी वजीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब कर लिया। सेकंड एडिशनल सेशन जज सखर को दी गई दरखास्त में वकील मोहम्मद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। अमवात की जिम्मेदारी वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आयद होती है। नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वफाक और पंजाब में हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खुलकर सामने लाया जाए। पीपल्स पार्टी क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों पर पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। PP ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के मरकजी सूबाई रहनुमाओं को हिदायत दी गई। PP रहनुमाओं ने क़यादत को हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। PP के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी गलत हुकूमती फैसलों का नज़ला खुद पर नहीं गिरने देगी। कराची में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा के नंबर क्यों कम आए? कायम मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने जिम्मेदार तलबा को करार दे दिया। कहा, निसाब तब्दील हुआ, बच्चे क्लासेस लेने नहीं आते, साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं। तलबा समझते हैं पर्चा भर दें तो मुम्तहिन सिर्फ देख कर ही नंबर दे देगा। शरफ अली शाह ने बताया कि मुम्तहिन, असिस्टेंट और इसके बाद हेड एग्जामिनर पर्चे देख कर नंबर फाइनल करते हैं। तलबा के खदशात दूर करेंगे, उनके इत्मीनान के लिए कॉपियां खोल कर दिखा सकते हैं। गुज़श्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन पर्चों की दोबारा जांच के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रुजू किया था।
गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कन चुराने का कारोबार मेरा या सलमान का है तो बता दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, गुज़िश्ता रोज के वाक़ये से ज्यादा अफसोसनाक उस पर सियासत करना है। पुलिस को कई बार कह चुका हूँ, कबाड़ी लोहा खरीदते हैं, कबाड़ी मार्केट में क्रैकडाउन करना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर साहब बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो। गटर का ढक्कन लगाने के लिए क्या अमरीकी सदारत चाहिए? मकामी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, अब तो सदर भी आपका। हम शहर को लावारिस नहीं छोड़ सकते। गटर का ढक्कन ना होने से बच्चे की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है? FIR किसके खिलाफ होगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, हेरोइन चीफ ढक्कन चुराते हैं तो हुकूमत कहाँ है? मेयर कराची ढक्कन दें। शाह फैसल कॉलोनी की UC के लिए 75 ढक्कन देने का वादा करके सिर्फ 20 दिए गए। खुले मैन होल में गिरकर जाबहाक 8 साला इबाद की तदफीन कर दी गई। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। ट्यूबवेल लगाने का झगड़ा थाना तांदियावाला की हवालात में 3 भाइयों के कत्ल की वजह बना। मकतूलीन के अजीज़ो अकारिब और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। तांदियावाला के हवालात में बंद 3 भाइयों बिलाल, उस्मान और नासिर को कत्ल किया गया। मकतूलीन का कजन आसिफ जख्मी हुआ। हमलावर अमारत के अक़ब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए और फायरिंग करके फरार हो गए थे। कत्ल का मुआवजा, उम्रे के 2 टिकट। लाहौर में शहरी ने उजरती कातिल से हम जुल्फ को कत्ल करा दिया। सब्जाजार पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल रियाज को हम जुल्फ इम्तियाज ने मकान के तनाजे पर कत्ल करवाया। मकतूल अहलिया के साथ बुध बाजार में खरीदारी के लिए आया था। हम जुल्फ कराए के कातिल को जाए वकुआ तक साथ लेकर आया था। पुलिस ने शूटर को मकतूल के मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से ट्रेस किया। मंसूबा साज इम्तियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कोहसारों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी सवात में सयाह खिंचे चले आए। सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शांगला भी बर्फ से सफेद हो गया। जिला इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी कागान में 2 फुट बर्फबारी ने पारा -7 डिग्री तक गिरा दिया। चित्राल में बच्चे और बड़े बर्फ के गोले बनाकर खेलने लगे। गलियात में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम और लिपा में सफेद मोतियों की बरसात ने मंजर सहरंगेज कर दिए। मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। नादरा मेगा सेंटर में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स ने काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नॉर्थ नाजिमाबाद और साइड चौरंगी में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने दावा किया कि पासपोर्ट्स के इजरा में ताखीर का मसला हल कर दिया है। हसीना वाजिद जहां भी हो हर सूरत गिरफ्तार करके पेश किया जाए। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने पुलिस को बराह रास्त हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम का दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। ICT का कहना है, शेख हसीना को दीगर 10 लोगों के साथ गिरफ्तार करके हर सूरत 12 फरवरी को पेश किया जाए। दीगर जिन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए उनमें मुशीर दफा मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक अहमद सिद्दीक और साबिक IG पुलिस बेनजीर अहमद भी शामिल। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात। इसराइल ने गजा पर फजाई और जमीनी हमले तेज कर दिए। 3 दिन में 100 से जायद हमलों में 200 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनुस, रफा, नसीरात, जबालिया में इसराइली हमलों में 24 घंटे में 88 फलस्तीनी शहीद और 208 जख्मी हो गए। हमास का कहना है, मुस्तकिल जंगबंदी के मामलात पर इसराइल की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं देखी। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुतअद्दिद इलाकों में जालाबारी भी हुई। मस्जिद नबवी में भी बारिश। जद्दा में तूफानी बारिश। सड़कें ज़ेरे आब। तमाम अंडरपास आरजी तौर पर बंद। अमेरिका की 7 रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज। लाखों लोग मुतासर। तालीमी इदारे बंद। मुतादिद हवाई अड्डों पर परवाजें मुअत्तल। बाज़ अमरीकी रियासतों में दर्जा हरारत -29 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। हजारों घर बिजली से महरूम। शुमाली आयरलैंड में 28,000 और इंग्लैंड में भी सैकड़ों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स और ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे बर्फ में छुप गए। स्कॉटलैंड के इलाके लाख ग्लासकार्नॉश में दर्जा हरारत -11 तक पहुंच गया। लंदन के वॉटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें बिजली में खलल के सबब मंसूख हो गईं।
चीन के बाद भारत में भी मेटान्यूमो वायरस फैलने लगा। 8 केसेस सामने आ गए। कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और गुजरात में शहरी मुतासर। HMPV सांस का वायरस है जो आम जुकाम और फ्लू से मिलती जुलती अलामत पैदा करता है। ये वायरस पहली बार 2001 में दरियाफ्त किया गया। दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम 18 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। वेस्ट इंडियन टीम इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 16 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। कायम पाकिस्तान का सासा है, उनके इलाज पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा साइम अयूब कल सुबह लंदन रवाना हो जाएंगे। स्पोर्ट्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज होगा। चेयरमैन PCB का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। 25 जनवरी तक काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। 27 जनवरी को कदाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का प्लान है। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब की तकरीब सज गई। दी ब्रूटलिस्ट ने मेला लूट लिया। दी ब्रूटलिस्ट को बेहतरीन फिल्म, हिदायतकार और अदाकार का अवार्ड दिया गया। आई एम स्टिल हियर की अदाकारा फर्नांडा टोरेस बेहतरीन अदाकारा और फ्लो बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार। 62 साल की डेमी मूर ने पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया।